अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रूस अपनी सरजमीन को फौजी तरीके से आज़ाद कराएगा, पुतिन की यूरोप को वार्निंग, यूरोपीय रहनुमाओं को खिंजीर दे दिया करार। हमने 10 माह में 8 जंगें रुकवाई, ट्रंप का दावा, कहा 1 साल में जो हमने हासिल किया वो कोई हासिल ना कर सका। ट्रंप शराब नहीं पीते लेकिन उनकी शख्सियत शराबियों जैसी है, चीफ ऑफ स्टाफ अमरीकी सदर का इंकिशाफ। नफरत और तकसीम फैलाने वालों के वीज़े मनसूख होंगे, ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने अवाम से नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का किया वादा। सऊदी अरब से केरला आ रही एयर इंडिया परवाज की हंगामी लैंडिंग, 160 मुसाफिर महफूज। और सर्दी का सितम, अफगानिस्तान में लाखों लोगों को भूख के बहरान का सामना, WFP की रिपोर्ट में इंकिशाफ। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय रहनुमाओं को खिंजीर करार दे दिया। रूसी जनरलों की तकरीब से खिताब में पुतिन ने कहा है कि यह यूरोपीय खिंजीर मादी का बदला लेने के लिए रूस को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन रूस के खिलाफ तमाम तबाहकुन मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। रूसी सदर ने कहा है कि सबको तवक्को थी कि रूस टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुतिन ने मजीद कहा है कि अगर मुखालिफ फरीक और उसके सरपरस्त मुजव्विज़ा अमरीकी अमन मंसूबे पर संजीदा ना हुए तो रूस अपनी तारीखी सरजमीन की आज़ादी ताकत से हासिल कर लेगा। This year, the Navy received new submarines, including the strategic missile carrier Knyaz Pozharsky, as well as 19 surface ships and vessels. The tests of Burevestnik strategic cruise missile with unlimited range and the Poseidon unmanned underwater vehicle have been completed successfully. Thanks to their nuclear propulsion, these systems will remain unique and one of a kind for a long time, ensuring Russia's strategic parity, security, and global standing for decades ahead. By the end of the year, the medium-range missile system with Oreshnik hypersonic missile will be deployed. Its first combat use took place last November. The high level of training of our units and formations and their ability to tackle the most complex missions is confirmed by regular maneuvers, including those involving our foreign allies and partners, to whom we share the experience gained during the special military operation. The goals of the special military operation will undoubtedly be achieved. We would prefer to do this and address the root causes of the conflict through diplomacy. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमने 10 माह में 8 जंगें रुकवाई और वो क्या जो कोई ना कर सका। वाशिंगटन में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा है कि 1 साल पहले अमेरिका मुर्दा था, नाकामियों के दहाने पर था, लेकिन 1 साल में जो हमने हासिल किया वो कोई हासिल नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि बाइडन पॉलिसियां दोबारा नाफिज होने नहीं दी जाएंगी। बाइडन दौर में गैर कानूनी इमिग्रेशन ने नौकरियां ली, हमारे इंतजामिया में सारी नई नौकरियां अमेरिका में पैदा होने वालों को मिले। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उन्हें करप्ट निज़ाम ख़त्म करने का भारी मैंडेट मिला है। अमेरिका में गैर कानूनी आमदरफ्त का सिलसिला बंद कर दिया है। Living and dead. Here at home, we're bringing our economy back from the brink of ruin. The last administration and their allies in Congress looted our treasury for trillions of dollars, driving up prices and everything at levels never seen before. I am bringing those high prices down and bringing them down very fast. Let's look at the facts. Under the Biden administration, car prices rose 22% and in many states 30% or more. Gasoline rose 30 to 50%. Hotel rates rose 37%. Airfares rose 31%. Now under our leadership, they are all coming down and coming down fast.
Democrat politicians also sent the cost of groceries soaring, but we are solving that too. The price of a Thanksgiving turkey was down 33% compared to the Biden last year. The price of eggs is down 82% since March, and everything else is falling rapidly. And it's not done yet, but boy, are we making progress. Nobody can believe what's going on. Here are just some of the efforts that we have underway. You will see in your wallets and bank accounts in the new year. After years of record-setting falling incomes, our policies are boosting take-home pay at a historic pace. Under Biden, real wages plummeted by $3,000. Under Trump, the typical factory worker has seen a wage increase of $1,300. For construction workers, it's $1,800. For miners, we're bringing back clean, beautiful coal. It's $3,300. And for the first time in years, wages are rising much faster than inflation. Remember that. The wages, just look at it. Wages are going up much faster than inflation. How big is that? Very importantly, there are more people working today than at any time. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी विल्स ने ट्रंप को शराबियों जैसी शख्सियत करार दे दिया। व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी विल्स के अमरीकी मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू से तहलका मच गया है, क्योंकि उन्होंने सिलसिलेवार इंटरव्यूज़ में डोनाल्ड ट्रंप और उनके दूसरे दौर सदारत के एजेंडे और उनके चंद करीबी इत्तेहादियों के बारे में गैर मामूली तौर पर साफ गोई की है। इंटरव्यूज़ में सूजी विल्स ने ट्रंप के साथ काम करने के तजुर्बे पर खुलकर बात की और कहा कि सदर की शख्सियत एक शराबी जैसी है। हालांकि ट्रंप शराब नोशी से परहेज़ के लिए मशहूर हैं। उनका कहना था कि वो जानती हैं कि ट्रंप शराब नहीं पीते, लेकिन उनकी शख्सियत शराबियों जैसी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने 4 रोज़ा 3 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में मस्कत पहुँचे, जहाँ हवाई अड्डे पर उनका प्रतिपाक इस्तकबाल किया गया। ओमान के सुल्तान हाशिम बिन तारिक ने हवाई अड्डे पर ज़ाती तौर पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इस्तकबाल किया। मोदी ने हुक्काम और हिंदुस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मस्कत में मौजूद हिंदुस्तानी बरादरी से खिताब भी किया। इस मौके पर मोदी ने हिंद ओमान गहरे ताल्लुकात की तारीफ़ की और इसे मज़ीद मजबूत बनाने के लिए कोशिशों की सताइश की। हिंदुस्तान की तरक्की में NRIs के किरदार के बारे में वज़ीर-ए-आज़म ने बातचीत की और शुक्रिया अदा किया। मोदी ने हिंदुस्तान की जदीद तरक्की के बारे में भी वाकिफ करवाया। भारत के टैलेंट की ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। दशकों से भारत IT और IT एनेबल सर्विसेज का ग्लोबल पावर हाउस रहा है। अब हम मैन्युफैक्चरिंग को IT की ताकत के साथ जोड़ रहे हैं और इसके पीछे की सोच वसुधैव कुटुंबकम से ही प्रेरित है। यानी मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। साथियों, वैक्सीन हो या जेनरिक मेडिसिन्स, दुनिया में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहती है, यानी भारत के अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर सॉल्यूशंस दुनिया के करोड़ों लोगों का जीवन बचा रहे हैं। कोविड के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन दुनिया को भेजी। सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक स्टडीज ने ढाका, बांग्लादेश में हिंदुस्तानी हाई कमीशन को मिलने वाली धमकी की सख्त मजम्मत करते हुए उसे संगीन सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी और सिफारती ताल्लुकात पर वयाना कन्वेंशन की वादे खिलाफ वर्जी करार दिया। CIHS ने कहा है कि सिफारती मिशनों की सलामती और सालिमियत मेज़बान मुल्क की अटल जिम्मेदारी है। काबिल एतमाद सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर के तौर पर ढाका में हिंदुस्तान के वीज़ा दरख्वास्त मरकज़ को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई बीच पर फायरिंग के वाक़े के बाद ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने अवाम से नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का वादा किया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई अवाम सदमे और गुस्से में हैं और वो
खुद भी गुस्से में हैं। ये वादे है कि इस बुराई के खिलाफ मजीद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। उन्होंने इंतहा पसंदों मुबल्लिगीन के खिलाफ कार्रवाई, सख्त सज़ाओं की निफाज और नफरत व तकसीम फैलाने वालों के वीज़े मनसूख या मुस्तरद कर देने जैसे इक़दामात का ऐलान किया। Envoy to combat anti-Semitism, Gillian Siegel, has delivered a report that sets out further steps we can take. The Australian Government adopts and fully supports the plan to combat anti-Semitism. We have already legislated for hate speech, hate crimes, hate symbols, outlawing doxing. We've already undertaken education action, including appointing the first ever student ombudsman and the development of the Envoy's report card on universities. Today I'm announcing a significant number of additional actions to build on the plan. Firstly, the Attorney-General and Minister for Home Affairs will develop a package of legislative reforms to crack down on those who spread hate, division and radicalisation. The Minister for Home Affairs will also have new powers to cancel. एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट AIE 398 सऊदी अरब के जिद्दा से रवाना होकर कोझिकोड आ रही थी कि परवाज़ में तकनीकी खराबी सामने आने के बाद केरला के कोची में हंगामी लैंडिंग कराई गई, जिससे एक बड़े फिदाई हादसे से बचाव मुमकिन हुआ। इस परवाज़ में तकरीबन 160 मुसाफिर सवार थे। तमाम मुसाफिर महफूज हैं और किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। लैंडिंग के बाद की जाने वाली इब्तिदाई जांच में ये बात सामने आई है कि तैयारे के 2 टायर फट चुके थे, जिससे खराबी की संगीनी की तस्दीक हो गई। हुक्काम के मुताबिक अगर बर वक्त फैसला ना लिया जाता तो सूरत हाल ज़्यादा संगीन हो सकती थी। फ़्लाइट क्रू के फौरी और दानिशमंदाना इक़दाम को एविएशन माहिरीन ने दुरुस्त और बर वक्त करार दिया है। अफ़गानिस्तान में सर्दी का मौसम ज़िंदगी और मौत की जंग बन चुकी है। जैसे जैसे दर्जे हरारत में कमी आ रही है, वैसे वैसे मुल्क के करोड़ों लोगों के सामने भूख और बेबसी का बहरान गहरा होता जा रहा है। हालात इस कदर ख़राब हैं कि कई ख़ानदानों के पास पेट भरने के लिए खाना नहीं है और मजबूरी में वो अपने बच्चों का मुस्तक़बिल भी दाव पर लगाने को मजबूर हो रहे हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक रवां साल सर्दियों में हालात आम सालों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा खौफनाक होने वाले हैं। अफ़गानिस्तान में सर्दी लंबी और बेरहम होती है। जंग से तबाहाल गाज़ा में जारी शदीद सर्द तूफ़ान और बारिश ने इंसानी अलमिया को मज़ीद गहरा कर दिया है, जहाँ बेघर ख़ानदान खैमों में रहने पर मजबूर है और हालात दिन ब दिन मज़ीद बिगड़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ ने गाज़ा में बच्चों की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार किया और ख़बरदार किया कि गाज़ा के बच्चों पर मौसमी असरात और जारी इंसानी बहरान संगीन ख़तरा बन चुके हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। रूस अपनी सरजमीन को फौजी तरीके से आज़ाद कराएगा, पुतिन की यूरोप को वार्निंग। यूरोपीय रहनुमाओं को खिंजीर दे दिया करार। हमने 10 माह में 8 जंगें रुकवाई, ट्रंप का दावा। कहा 1 साल में जो हमने हासिल किया वो कोई हासिल ना कर सका। ट्रंप शराब नहीं पीते लेकिन उनकी शख्सियत शराबियों जैसी है। चीफ ऑफ स्टाफ अमरीकी सदर का इंकिशाफ। नफरत और तकसीम फैलाने वालों के वीज़े मनसूख होंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने अवाम से नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का किया वादा। सऊदी अरब से केरला आ रही एयर इंडिया परवाज़ की हंगामी लैंडिंग, 160 मुसाफिर महफूज। और सर्दी का सितम, अफगानिस्तान में लाखों लोगों को भूख के बहरान का सामना। WFP की रिपोर्ट में इंकिशाफ। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।